You once cried for your students. I was very young at that time, and Hello, everyone. Welcome back to Exploring Minds, a podcast filled with love, joy, interesting stories, and whatnot. We are back with another beautiful podcast. काफी मिन्नतों के बाद हमारी कॉलेज डीन राजी हुई हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए. And guess what? I'm really excited. The chat, the stories, the laugh, everything is wonderful. I assure you that you'll love it. Her name is Dr. Ruchi Mathur, a renowned personality in our college. She's our college dean, maths professor, has written many research papers and published it. See, she's an eloquent speaker too. And wait, that's not it. There is so much more to it. So many of you know her, but still there are so many things that you don't know about her. So let's begin with a conversation. Plug in your earphones and enjoy Exploring Minds with Dr. Ruchi Mathur. Okay, so finally we have Dr. Ruchi Mathur ma'am with us. So, what is it like to be a dean, ma'am? For your insights, she is a dean of first year in our college. So, what is it like to be a dean? What are the difficulties and मतलब basically dean होते क्या है? I am dean first year in JCRC college. Being dean for first year students is a great responsibility for me, what I think, because first year is the transition state for students from school life to college life, and when they are having some technical education, and it is a big transition for them, and we act as supporters for them. We have to support them, we have to help them in this transition so that they can easily adapt to their college life, their new learning phase of their life. So, ma'am, dean actually teachers को भी manage करते हैं. हाँ. So how? Teachers को manage नहीं करते. Dean जो first year faculty है और dean, they work as a team for the students. And basically you are the captain. जैसे hierarchy, it's just a professional hierarchy. जैसे कि मान लो एक क्रिकेट टीम है, वहाँ रोल जो धोनी का होता है वो आपका रोल है. धोनी. It's just a professional hierarchy and nothing else. Otherwise, everyone works as a team. It is a teamwork. There are 1,000 students in first year of JCRC, so no one alone can manage. So a teamwork is required. So एक स्टूडेंट की लाइफ में ओवरऑल मतलब कि नॉट जस्ट एकेडमिक्स बट ओवरऑल टीचर का कितना इम्पैक्ट रहता है? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस. लाइक आपके कई सारे टीचर्स रहे होंगे पहले, तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहता है टीचर की. टीचर का मेरे ऊपर तो बहुत इम्पैक्ट रहा है, बाकी आज के स्टूडेंट्स का मैं कह नहीं सकती, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. आई एम टॉकिंग जनरली, मैं एक किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही, बट सिनेरियो हैज चेंज्ड अ लॉट. जो हमारे टाइम में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, वो मुझे अब थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, बट मेरे टीचर्स का मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट है. एंड द रीजन आई एम इन मैथमेटिक्स इज माई टीचर्स ओनली. मेरे प्राइमरी एजुकेशन में जो मेरी टीचर थी डॉक्टर जया भट्टाचार्य, जो मैथ्स पढ़ाती थी, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. एक्चुअली शी वाज द पर्सन हु रिकॉग्नाइज्ड द मैथमेटिकल स्किल्स इन मी. उनको ऐसा लगता था कि जो पूरी क्लास पढ़ रही है मैं थोड़ा सा उससे अहेड हूँ, तो वो मुझे अलग से वर्कशीट्स और वो करवाती थी. तो मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आता था, बट अब समझ में आता है कि उनका कितना बड़ा रोल था मेरी लाइफ में मैथमेटिक्स से प्रेम करने के पीछे. Then my 9th-10th teacher, Sir B.N. Roy, Professor B.N. Roy, he was retired professor from Ajmer Government College. He had a great impact on my life. वो ना सिर्फ हमें मैथ्स पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बल्कि हम ये कहेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज जो मेरे अंदर अगर कुछ मॉरल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, तो वो भी सर रॉय के दिए हुए हैं. वो हमसे इतनी बातें करते थे. He was a guardian for me in my school. And he had a great faith in me. और वो जो faith जो था ना, वो हमेशा मोटिवेट करता था अच्छा करने के लिए.
कि सर को प्रूव करना है कि हाँ मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ एंड आई विल फुलफिल व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो टीचर्स का तो बहुत इम्पैक्ट होता है। हम शायद हमारे मम्मी पापा की एक बार को नहीं सुनते, लेकिन टीचर बहुत कुछ होता है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हों, मैं कोशिश भी करती हूँ। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई एम इन दिस एफर्ट। योर एफर्ट्स आर सक्सेसफुल। तो मैम जैसे आपने कहा, तो ये एज अ प्रेशर क्रिएट नहीं होता था आपके ऊपर कि जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि टीचर्स आप में इतना फेथ रख रहे हैं कि यू विल परफॉर्म ग्रेट? नहीं अंकित, कभी भी प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब तुम्हें प्राइमरी का बता रही हूँ ना, तब तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये टीचर मुझे वर्कशीट लाकर क्यों दे रही है। ये उनका अपनी थिंकिंग थी कि इसको एक हायर लेवल वर्कशीट दे के देखती हूँ कि ये कर पाती है क्या। तो मुझे लगता था हाँ उन्होंने मुझे कुछ दिया है और मेरा इंटरेस्ट आ रहा है करने में, मैं करती हूँ, और कल जब उनको ले जाके दूंगी तो वो कितनी खुश होंगी। मेरा सिर्फ इतना सा वो होता था, गुड मिलेगा कि मुझे वो बहुत खुश होंगी। जया भट्टाचार्य मैम बहुत खुश होंगी, और भट्टाचार्य मैम की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। और जब रॉय सर हमारी लाइफ में आए तो रॉय सर हमसे ओरल मैथ्स के क्वेश्चन पूछते थे, और तब सिर्फ एक ऐसी भावना होती थी कि सबसे पहले आंसर दिया ना तो रॉय सर, उनके मुंह से गुड बहुत कम निकलता था, पर वो कभी उनके मुंह से गुड निकल गया तो लाइफ बन गई। आहा, आज का दिन बहुत अच्छा था, रॉय सर ने गुड बोला। तो ये प्रेशर नहीं था, प्रेशर कतई नहीं था, बल्कि ये एक हैप्पीनेस थी कि हाँ खुशी मिलती थी मुझे। सर रॉय, भट्टाचार्य मैम, एक हमारी इंग्लिश की मैम थी सोनू मैम, इन तीनों को खुश करने में बहुत खुशी मिलती थी कि आज इन तीनों से अप्रिसिएशन मिला है, तो मतलब कुछ तो अच्छा करा है लाइफ में, दिन अच्छा जाएगा। दिन अच्छा जाएगा। Okay, so I have heard that आप फिजिक्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हो। Not many people know that, but आप हो। तो can you elaborate on this? एक्चुअली मैथ्स और फिजिक्स कुछ तो कनेक्टेड होते ही है। मेरा बेसिकली इंटरेस्ट मैथ्स में था, लेकिन फिजिक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिजिक्स के लॉज। तो मैंने जब ग्रेजुएशन करी तो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स। तो फिजिक्स मेरे फिजिक्स में 12th में भी अच्छे मार्क्स थे, उसको देखते हुए मुझे सजेस्ट किया गया था कि फिजिक्स ऑनर्स करो, बट ड्यू टू माई इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स मैं फिजिक्स ऑनर्स तो मैंने नहीं लिया। बट फिजिक्स पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, मजा आया पढ़ के, और मेरे ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स थे कॉलेज में, तो आई गॉट द गोल्ड मेडल इन फिजिक्स। इवन आई गॉट द चांस टू गो टू जर्मनी इन अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, but somehow I couldn't. Do you regret it? No, I don't regret anything in my life. Whatever happened to me is best. So, why not PhD in physics? Because I did my PG in mathematics. Mathematics was my love. No, okay. Love. You can do PhD in the subject you are doing PG. Okay. No, मतलब ये thought cross तो किया होगा ना कि like गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स, तो व्हाई नॉट लेट्स ट्राई। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर मैं जर्मनी जाती तो मेरे पास फिजिक्स में पीजी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ये भी एक रीजन था कि मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे मैथ्स में ही करना था पीजीएफ। यू कुड नॉट लीव योर लव बिहाइंड। ओके, नेवर। एंड यू सेड दैट मैथ्स एंड फिजिक्स आर समवेयर इंटररिलेटेड। हाउ? Physics is mathematics only. Mathematical laws are used abundantly in physics. Or physics is numericals. Okay. You have to solve it, and solution means mathematics. It is everywhere imbibed in physics. Mathematics is everywhere there in physics. Whether you state the laws of motion or gravity or anything, everywhere projectile motion is mathematics. Sometimes we had subjects like hydrodynamics, statics, and this dynamics in mathematics. Although these papers are from physics background नहीं, तो जब हम उनको पढ़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं फिजिक्स ही पढ़ रही, वही प्रोजेक्टाइल मोशन, वही सब चीजें, बट इट इज मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर वाइजन। ओके, एंड मतलब मैथ्स में पीएचडी करी आपने, व्हाट वाज योर टॉपिक? My topic was investigation of certain new aspects of fractional calculus and geometric function theory. फ्रैक्शनल कैलकुलस इज द न्यू ब्रांच। अब तो मैं न्यू नहीं कहूंगी है इसको, काफी टाइम हो गया, बट इट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एट दैट टाइम। अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एक ऐसा एरिया है जहां दे कैन एक्सप्लोर मच,
क्योंकि मैथमेटिक्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें फ्रैक्शनल कैलकुलस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इन दिनों। फ्रैक्शनल कैलकुलस इज नथिंग बट, अगर मैं बच्चों की लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन व्हाट दे आर स्टडीइंग दिस टाइम, जिसमें हम इंटीजर पावर के डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक यू डू dy by dx और d2y by dx स्क्वायर। और फ्रैक्शनल ऑर्डर का अगर हम इसमें पावर लगाते हैं, जैसे d12y by dx half, तो इट इज फ्रैक्शनल कैलकुलस और इट इज समवेयर रिलेटेड टू मेमोरी। अगर हम कहीं भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, इवेंट्स में अगर मेमोरी को यूज करना है आप, कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट्स पर हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें पूरा बीच का डेटा चाहिए, देन फ्रैक्शनल कैलकुलस इज व्हेन मेमोरी इज इन्वॉल्व्ड। जैसे स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी होता है पॉइंट पॉइंट पे, अगर when you have to recall the memory, say in crime detections and image processing, fractional calculus is playing a very important role in these days. Okay, that's great. And why do you think कि physics और math से कुछ ज्यादा ही डर लगता है बच्चों को? Like I was reading a मतलब survey, around 60% of the students fear mathematics. So why do you think कि physics और maths में ऐसा क्या है कि उनको इन दोनों से बहुत ज्यादा डर लगता है? इसलिए डर लगता है क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज पढ़ी और आपको याद हो जाएगी। मैथ्स इज प्रैक्टिस, इट इज अ टूल, बेसिकली इट इज अ टूल टू डेवलप योर स्किल्स। अब अगर आप ये सोचते हो कि मैंने आज ये चैप्टर पढ़ लिया, अब मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन ऑल द एरियाज। यू नेवर गेट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगेन। आपका डेटा चेंज हो जाएगा, आपके न्यूमरिक्स चेंज हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम का बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अगर कोई चीज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी तो वो 5 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड पे आ गई, तो वहीं पे बच्चा लगता है ये क्या कर दिया, मैंने जो पढ़ा था वो तो सब बदल गया, घंटे को मिनट में, मिनट को घंटे में। तो इट इज अ थिंग वेयर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और अगर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना तो इसमें आप एक्सेल कर जाओगे। बट वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको एक लेवल तक खुद को लेकर आना पड़ेगा, और वो लेवल यू कैन ओनली अचीव बाय प्रैक्टिसिंग। आप रोज करके देखो मैथ्स। अगर आपको, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गोल्डन रूल ऑफ 21, 21 दिन आप करके देखो, आपको 21 दिन में इच्छा होने लग जाएगी कि चलो नेक्स्ट डे फिर लेके बैठ। एक बार इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद यू विल नेवर लुक बैक। और मुझे दुख तो उस वक्त होता है जब बड़े इंजीनियर्स कहते हैं कि मैथ्स से डर लगता है। इंजीनियरिंग इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। आपका मैथ्स में इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। आपने मैथ्स पढ़ी है, आप मैथ्स फील्ड पे हो, आपने मैथ्स का एग्जाम दिया है, आपने जेई क्लियर करा है, इसलिए आप इंजीनियरिंग में हो। हाउ कैन यू से कि हमें मैथ्स से डर लगता है? ये डर नहीं है, ये फोबिया एक क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने चारों तरफ की जिस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी उसको कह दो कि डर लगता है। वाई डू प्रैक्टिस। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई कैन टेल यू कि आपको अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट प्रैक्टिस डेली। आज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल अगर मैं आपसे वही चीज करूंगी तो आप नहीं कर पाओगे। डू प्रैक्टिस डेली। ओके, सो मतलब कि इस रिगार्डिंग मतलब स्टूडेंट्स में ऑफ कोर्स बातें होती है कि व्हाई डू यू फियर मैथ्स वगैरह, तो मतलब एक मेजॉरिटी आंसर ये निकल के आता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, कि हम पढ़ तो रहे हैं बट कोई काम ही नहीं आ रहा तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मतलब इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन द एप्लीकेशंस की। वैसे तो आई थिंक कि मैथ्स हर जगह, जैसे फिजिक्स में घुस ही जाता है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स आ ही जाता है कहीं ना कहीं। एवरीवेयर मैथमेटिक्स इज देयर एवरीवेयर। आप अपनी इंजीनियरिंग करो, आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो, उसमें अगर आप एल्गोरिदम बनाते हो देन एल्गोरिदम इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। आप अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो और आप वहां सर्किट बना रहे हो देन यू कैन सॉल्व द सर्किट ओनली विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। आप वेव्स जितनी भी पढ़ते हो दैट इज फोरियर सीरीज। आप उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हो दैट इज मैथमेटिक्स। आपने सर्किट लिया, सर्किट को सॉल्व करने के लिए यू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, रेजिस्टेंस, करंट, इंडक्टेंस, सबकी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी एंड दैट कैन बी सॉल्व ओनली बाय मैथमेटिक्स। All I am telling you about these days the fuzzy systems, वो भी मैथमेटिक्स है। Artificial intelligence is nothing but mathematics. Machine learning is mathematics where you are using vector space, matrices, everywhere it is used.
You people in first year are studying only the applied part of mathematics, but you will get to know about its application when you will do some project work or you will write some research paper. Then you will know the importance of mathematics. Nowadays, you can find a hell lot of research papers which speak about role of mathematics in electrical engineering, role of mathematics in machine learning, role of mathematics in artificial intelligence, role of mathematics in image processing, cryptography, graph theory, crime detection, and circuit solving, and satellite launching. Everywhere, right from the time you wake up in the morning, you hold a toothbrush in your hand, you brush your teeth, mathematics starts. Okay. And it ends when you sleep in your bed. Everywhere there is mathematics. Right. The way you are rolling the brush in your mouth to the way you are sleeping and having a posture on the bed, it is mathematics. Frequency, और टाइम लगाना भी, अलार्म कितने बजे का लगा रहे हैं? अलार्म लगाना, और आप जिम जाते हो, जिम में आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करके देखो, आपको वो कहेगा 10 मिनट करना है तो 10 मिनट ही करना है, आप उसको 15 करके देखो, आपकी बॉडी आवाज देने लग जाएगी स्टॉप। एंड यू टॉक्ड अबाउट कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। हाँ. तो आई थिंक कि किसी को पता ही नहीं, ऑलमोस्ट बच्चों को तो पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता व्हाट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब अप्लाइड। It is just the application part that you are studying. Pure mathematics is very different from what you are studying. But it is not necessary for you people to study pure mathematics because you don't have to do some research or anything in area of mathematics. Research is being done and the results are being shared with you, और आप वो results को directly use कर रहे हो, right? और उन रिजल्ट्स को यूज करके आप उनको अपने आगे इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे लगाओगे और यू विल गेट द आंसर्स। बट वो रिजल्ट्स कहाँ से आए, दैट इज द प्योर मैथमेटिक्स दैट मैथमेटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर स्टडीइंग दीस डेज। ओके, एक वियर्ड क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स की लैब्स भी होती है क्या? हाँ, तो कॉलेजेस में क्यों नहीं होती है? वन थिंग, मतलब ये मेरे को बहुत ऐसे अटपटा। नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मैथ्स की लैब्स होती हैं, यूपी में बहुत जगह है। वहाँ जैसे फ्लूइड डायनामिक्स में, हाइड्रोडायनामिक्स में, इनमें जहाँ भी रिसर्च होती है तो वहाँ लैब्स यूज होती है। विस्कोसिटी, अगर हम ब्लड फ्लो विस्कोसिटी पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो लैब्स में जाकर उनकी विस्कोसिटी वगैरह चेक होती है, डेटा कलेक्शन और उनमें काम आती है, तो लैब्स में तो इन सब जगह। ओके, ये सुना नहीं, नई चीज। ओके, सो अगर किसी को इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में और उसने कॉलेज कर लिया, फिर अगर उसको पीएचडी करना है तो प्रोसेस क्या रहता है? बिकॉज मोस्टली तो प्रोसेस ही नहीं पता रहता है कि आर यू आस्किंग अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट? नहीं, एनी स्टूडेंट, मान लो कि 12th कर लिया उसने एंड उसको पीएचडी करना है मैथमेटिक्स में। नहीं, तो he or she may opt for mathematics as a subject for graduation and do PG in that, and after PG he or she may enroll in PhD. And there are many exams like NET, JRF where they can get the scholarship also, sponsorship from the government for their PhD. आपने नेट दिया था? I gave once but I didn't get selected. So what are the difficulties, मतलब पीएचडी करने में? नहीं, not at all. कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी. In fact, I did my PhD while working in JECRC. So it got hectic sometime, but there is no as such difficulty in doing PhD. But it takes time. That's it. Okay. तो मैम आप एजुकेशन फील्ड में काफी वक्त से, पहले एज अ स्टूडेंट थे, नाउ एज अ प्रोफेसर, तो पब्लिक स्पीकिंग कितना इम्पोर्टेंट है? Did you ever feared it or? I never feared public speaking. मेरे को एजुकेशन लाइन में, इनफैक्ट टीचिंग लाइन में पढ़ाते हुए आज मुझे 19 साल हो गए, 19 years. फियर तो कभी भी नहीं था, बट हाँ when we start teaching तो नर्वसनेस होती है थोड़ी सी कि although I started teaching engineering students from my first batch only, तो बस ये था कि I was also young at that time. Never taught in school? No, never. Wow. So just after completing my PhD, PG,
I joined JCRs. तो बस एक वो यह था कि स्टूडेंट्स मस्ट बी ऑफ माई एज और 2 or 3 years यंगर टू मी. तो ये जरूर था कि मैं खुद अभी इतनी यंग हूँ, मैं उनको हैंडल कैसे करूँ. वो हैंडल करने का थोड़ा सा प्रेशर जरूर था. बाकी पब्लिक स्पीकिंग फियर कभी भी नहीं था. आई यूज्ड टू बी अ गुड orator at time of my schools. I did participate in debates, extempores, elocutions a lot. स्टेज फियर तो नहीं था. नर्वसनेस थी इस बात की कि स्टूडेंट्स और मैं ऑलमोस्ट बराबर से ही है, बट somehow it went great. So I think you are 6 times extempore champion. हाँ, तो स्कूल टाइम. हाँ, तो किसी को भी अगर आपको टिप्स देना हो कि व्हाट आर वो द तो हम टिप्स. देते हैं. हाँ, वो तो हम देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को, हम टिप्स देते ही हैं, क्योंकि वो भी फाइनल ईयर में आके जीडी, पीआई, एक्सटेम्पोर्स और एचआर राउंड क्लियर करते हैं. तो हम लोग अपने छोटे मोटे टिप्स उनसे शेयर करते हैं, जो कई बार उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है. डू शेयर नाउ. तो मैं तो अभी आपसे तो यही कहना चाहूंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट ईयर से सुधारो. डोंट वेट फॉर फाइनल ईयर. हाउ. रीडिंग, स्पीकिंग. ये 2 चीजें खूब करो. गुड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इनको रीड करना है. इनफैक्ट अंकित, वी वर प्लानिंग टू ओपन अ रीडिंग क्लब इन फर्स्ट ईयर ओनली. नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर. Somehow we could not do it in 2022 and 23, but definitely we'll do it in 23-24. I will definitely initiate this thing, reading club, For sure. first year. When student will start doing practicing this reading and speaking in first year only, 4 साल में तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाएगा. क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है कि मैंने 18 दिन बाद कोई कंपनी आने वाली है और मैंने आपसे कहा कि अपनी कम्युनिकेशन को सुधार लो और आप सुधार पाओगे. लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस करोगे तो दुनिया की कोई ताकत ही आपको नहीं रोक पाएगी. ओके. तो मैम ठीक है, बुक्स पढ़ना वगैरह सब ठीक है, बोलना ठीक है, मिरर के सामने बोलना इज फाइन. क्यों अपने पीयर में बोलो ना, साथ में बैठो ना. नो, देयर इज ऑलवेज दैट फियर ना कि मतलब कोई कुछ नया ट्राई करता है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ फियर कि मान लो कि एक ग्रुप है, सब हिंदी में बात करते हैं. नाउ सपोज आई और समवन एल्स स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, कि भाई आज से तो हम इंग्लिश में बात करेंगे. तो देयर इज ऑलवेज दैट फियर प्रेशर ना कि यार ये अचानक यहाँ बीच में कहाँ इंग्लिश घुसा नहीं, है. तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना. हम सबको एक साथ लगना है. सबका साथ सबका विकास. कि हम सबको अपनी स्किल्स सुधारनी है. लेट्स सिट टुगेदर. तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है फर्स्ट ईयर में. यू हैव ओनली 26 hours ऑफ योर कैरिकुलम इन फर्स्ट ईयर. बाकी आप फ्री हो. एक्टिविटी पीरियड है, उसमें सब साथ बैठेंगे ना. और इफ यू वांट, हम टीचर्स भी आपके संग एसोसिएट कर सकते हैं. आप सब साथ बैठेंगे, जीडी कंडक्ट करेंगे, हम लोग एक्सटेम्पोर करेंगे, इलोक्यूशंस करेंगे. क्यों नहीं सब पार्टिसिपेट करेंगे? ये सिर्फ आपकी नीड थोड़ी है, ये तो सबकी नीड है. आज कंपनीज कितनी बार क्रेडेंशियल्स देख के लेती हैं और कितनी बार आपकी पर्सनालिटी देख के. एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट. योर पर्सनालिटी स्पीक्स अ लॉट. ओके. तो ठीक है, घर पे हमने प्रैक्टिस कर लिया, फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कर लिया, बट नाउ वी आर गोइंग ऑन अ स्टेज जहां लोग 200, 300, 500 लोग बैठे हैं एंड आप स्टेयर्स पे हो और स्टेज वहां तैयार है, योर नेम हैज बीन कॉल्ड. नाउ वो एक अलग एंजाइटी होती है जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले वो किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टेज पे जाने के बाद इट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. तो उस फेज में व्हाट यूज्ड टू डू कि मतलब टू कीप योरसेल्फ काम, डिड यू डू समथिंग एल्स या फिर नॉर्मल? नहीं, just think that you are the best. Okay. And whatever you will speak, the other person is listening, and at least you have the guts to go to the stage and speak. You are moving out of your comfort zone. Bilkul. And you are doing something exceptional, what these people are not doing. So have confidence in you that you are the best, and you are what you are speaking. They have only the choice of listening it. They are not speaking, only you are speaking. You have that guts to speak. You are on the higher stage. Okay, now अभी 1-2 बार जो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया स्टेज पे जाने का, now it's like कि ना आई एम क्रेविंग कि when I get the opportunity again. See, एक ही बार में इसका fear डाउन खत्म हो गया. मतलब that fear is there, but
मतलब अब ना एक्साइटमेंट और वो शेयर करने का वो ज्यादा है. लाइक आई सजेस्ट एवरीवन कि एक ना एक बार तो ट्राई करना चाहिए. देन यू डिसाइड कि आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड और नॉट. सो एंड व्हाट डू यू थिंक कि बेसिकली लाइफ में फ्रेंड्स का और फैमिली का कितना इंपॉर्टेंस रहता है और आपकी लाइफ में कितना रहा? फैमिली और फ्रेंड्स का तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट एवरीवेयर. आपकी हर बात पे कई बार टीचर ही कह देते हैं कि दिस शोज योर अपब्रिंगिंग. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमने फैमिली में जैसा देखा है हमारी पर्सनैलिटी वैसी हो जाती है. तो फैमिली का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एवरीवेयर देयर. अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत सिंसियर है, जिसके अंदर सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पोलाइट है, तो इट मीन्स कि वो उसने एक बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग पाई है, उसके घर में सब पोलाइट है, क्योंकि जो उसने देखा है वही वो उसके अंदर भी उसकी पर्सनैलिटी में इम्बाइंड है. सेकेंडली फ्रेंड्स. फ्रेंड्स इज योर कंपनी दैट यू गेट व्हेन यू एंटर इन स्कूल और कॉलेज. तो जिसे कहते हैं ना संगति का असर. अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली यू विल ग्रो. और यहाँ कॉलेज में तो कंपनी का बहुत ही फर्क पड़ता है आपके फ्रेंड्स का, क्योंकि आपको एक चीज नहीं आती वो हो सकता है आपके फ्रेंड को अच्छी आती हो, और आपको एक चीज बहुत अच्छी आती है जो आपके फ्रेंड को नहीं आती. तो म्यूचुअल मिलके जो आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो ना, वो कोई भी नहीं कर सकता. आपके फ्रेंड ने आपको ये चीज समझाई, आपने उसको ये समझाई, और दोनों ने मिलकर के जो करा ना, वो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा कुछ निकलेगा. तो पीयर ग्रुप जो अपना होता है, अपना फ्रेंड सर्किल जो होता है, उनका इम्पैक्ट हम पे बहुत पॉजिटिव होता है. और मैं तो यही कहूंगी कि उसको नेगेटिव कभी भी ना होने दें. Like friends are your home away from your family. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल तो वही आपकी फैमिली भी है. That's great. तो मैम जैसे कि you have a daughter as well. तो टू डॉटर्स. तो okay, two daughters. तो बेसिकली ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ एंड देन देयर इज पर्सनल लाइफ, और एज अ टीचर, और आप टीचर भी हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? तो बैलेंस बन पाता है, और अगर नहीं बन पाता है तो हाउ डू यू डील विद इट? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, मतलब काफी सारे ऐसे होंगे जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे. सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. अंकित, बैलेंस तो बन जाता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 19 years. तो now I am and my family too is used to it. But what thing is required at this time is the support from your family. So my family, I am lucky enough that my family is very supportive. Sometimes I feel that I can give more time to my kids, but मेरे किड्स भी अब यूज टू हो गए, तो जितना टाइम हम साथ में स्पेंड करते हैं दैट इज द क्वालिटी टाइम. उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं. बाकी दिस कॉलेज एंड माय स्टूडेंट्स आर आल्सो माय फैमिली. आई लव देम लाइक माय किड्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ऐसा रिग्रेट होता है कि मैं उनको समय नहीं दे रही या इनको समय नहीं दे रही. मतलब बेसिकली वो सभी फैमिली बैलेंस करना इज नॉट एट ऑल मुश्किल. हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 100% हम खुश रहते हैं. कई बार इससे फ्रस्ट्रेशन होता है, बट दैट इज टेम्पररी. इट कैन बी डेल्ट विद. हाँ, इजीली. हाँ, ओके. सो थोड़ा पीछे चलते हैं. जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स जो है पहले बहुत अलग होते थे स्टूडेंट्स, और अब काफी अलग है. तो क्या टीचर्स में भी ट्रांजिशन आया है, पहले के टीचर्स और अभी के टीचर्स? बिल्कुल अंकित, तुम सही कह रहे हो सकता है ऐसा हुआ हो, बट शायद मैं 19 years के उस गैप को कंपेयर कर रही, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है. चेंजेस आए होंगे, सब तरह से चेंजेस हो रहा है, हर तरफ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो चेंज हुआ होगा. बट इट्स नॉट लाइक कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बदला है. वो रिलेशनशिप अभी भी वही है. एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट, एक वही जो बात सालों से कही जा रही है वही है कि व्हेन स्टूडेंट्स अचीव, टीचर इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. अगर वो सक्सेसफुल होता है या कुछ अचीव करता है तो वो चीज आज भी चेंज नहीं हुई है. तो वी एज टीचर्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू आवर स्टूडेंट्स. आज भी अगर कोई एलुमनाई मुझे कहीं मिल जाता है, और अभी थोड़े दिन पहले ही मैकडी में एक स्टूडेंट मिली थी, और उसने मुझसे देखते ही बोला, मैम आपको मैं याद हूँ. तो मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटा, यू पीपल थिंक कि हम इतनों को पढ़ाते हैं हमें याद नहीं रहता. मे बी समटाइम्स इट हैपेंस कि नाम याद नहीं रहे, बट
हमें याद रहता है, वी आर दैट मच कनेक्टेड टू यू पीपल। तो ऐसा नहीं है कि आपको ही अपने टीचर्स याद रहते हैं, टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स याद रहते हैं। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन वेयर रिस्पेक्ट इज देयर, वेयर अफेक्शन इज देयर, लव इज देयर, प्राइड इज देयर, ग्रेटिट्यूड इज देयर। सो इट शुड बी नर्चर्ड वेरी ब्यूटिफुली। एंड मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जब भी यहाँ से जाते हैं यही कहती हूँ, प्लीज बी इन टच, बी इन टच। और जब उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो शायद हमसे ज्यादा प्राउड कोई भी फील नहीं करता। Okay, so I think you once told me that you once cried for your students. हाँ, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड मैंने पढ़ाने में अपनी जी जान लगा दी थी। एंड आई एक्सपेक्टेड कि ये सब तो मैंने क्लास में कराया है, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैंने कराया नहीं है, तो मैं एग्जाम लूंगी तो सब बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बट ऑब्वियस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने बता दिया और अब इनको नहीं आता और उस पर कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मैं, और उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। आया आज टाइम कि क्यों अच्छे नहीं आए, ये तो सब मैंने पढ़ाया था क्लास में। बोले मैम पता नहीं, और ये पता नहीं सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ। और शायद वो मेरा पहला ही साल था, तो मेरे को आंखों से आंसू हो गए। मैंने कहा क्या गलत हुआ जो तुम लोग नहीं परफॉर्म कर पाए। तो वो फिर उनको लगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया। नहीं मैम, कुछ हमारी गलती होगी, आप मत परेशान हो, हम नेक्स्ट टाइम आप ये करेंगे। इट हैपेंड ओनली वंस इन माय लाइफ, बट हाँ उस टाइम मैं शायद थोड़ी सेंसिटिव थी ज्यादा। ओके, सो अभी एजुकेशन मैम ऑफलाइन से स्विच होके ऑनलाइन भी काफी हद तक आया है। लाइक यस्टरडे आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वहाँ एक वर्चुअल स्कूल का एडवर्टीजमेंट आ रहा था कि यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने ये वो कर दिया है, मतलब लागू कर दिया है कि यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल एंड यू गेट द सेम डिग्री। राजस्थान बोर्ड की फ्रॉम 9 to 12 यू कैन डू होम एजुकेशन एंड यू गेट द सेम डिग्री। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑफलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन? मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे तो नथिंग कैन रिप्लेस क्लासरूम टीचर, नथिंग कैन रिप्लेस। दीज आर द एड्स दैट स्टूडेंट्स मे यूज, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एड्स। Digitalization and technology is very much is being used these days by, especially by rural students in rural areas, and it is a beautiful aid, but nothing can replace classroom teaching. When you interact directly with your teacher, there is many things that teacher speaks while interacting with you in a class which he or she cannot speak on the online mode. And which is very much useful to you, not only as a subject content but personal growth also. Like as I said, my teachers played a very important role in my life. Had it been online teaching, I don't think I could have said that कि my teachers played her. Maybe मुझे लगता है B.N. Roy हाँ हमारे मैथ्स टीचर थे, but what B.N. Roy sir means to me even today, that is because of our relation, our connection as a teacher and a pupil. That intimate relationship हाँ, वो नहीं हो पाता। हाँ, और कहीं ना कहीं वो भी तो फियर होता है ना कि ऑनलाइन तो सब चीज रिकॉर्डेड है, तो कहीं कुछ स्लिप ऑफ हाँ, टंग। बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल आपने जो प्रिपेयर स्क्रिप्टेड होते हो हाँ, आप। हाँ, और एक टीचर स्क्रिप्टेड कैसे पढ़ा सकता है? अब मैं तो नहीं पढ़ा सकती, मैं तो नहीं पढ़ा सकती। मैं तो खूब बातें करती हूँ क्लास में और कुछ स्टोरीज भी शेयर करती रहती हूँ क्लास में। वो अगर मेरे को ऑनलाइन में बांध दिया जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो डू यू एवर थिंक कि अब काफी वक्त पढ़ा लिया, नाउ यू शुड डू समथिंग एल्स? डू यू हैव लाइक कभी ऐसा आता है? पढ़ा लिया और कुछ और करना ऐसा तो कभी नहीं आता। पढ़ाने के साथ ही कुछ और करना है, ये तो मतलब कि ऐसा होता है ना कि लाइक करियर स्विचेस करते हैं लोग। नहीं, नो 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 नो, लाइक यू आर सेटिस्फाइड? आई एम वेरी मच। अच्छा हाँ, you willingly joined as a teacher, like you always wanted to be a teacher. So do you have any future aspirations? Like how do you look at yourself? मतलब कि कुछ साल बाद आपको कुछ करना है, like something you haven't done yet but you have to. I want to learn new technology. ये मेरी इच्छा जरूर है। मैं जैसे मेरा रिसर्च जो है वो प्योर मैथमेटिक्स में है, बट मैं चाहती हूँ कि अब मैं इंटरडिसिप्लिनरी काम करूँ। मैं AI सीखूं, मैं मशीन लर्निंग सीखूं, इनमें कुछ करूँ, कुछ अपने वीडियो बनाऊं, कुछ अपलोड करूं। मैथ्स क्या है, इन एरियाज में मैथ्स का रोल क्या है, इन पर बात करूं। बट एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड मैथ्स।
Okay. हाँ Okay. So maths is your love, and you are finding other ways to love it. हाँ Okay, You that's may say perfect. that. Okay. So to end with, आप जैसे हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप जैसे स्टोरी सुनाते हो, तो एक स्टोरी दैट इंस्पायर्ड यू, एंटरटेन यू और व्हाटएवर, इट कैन बी अ चाइल्डहुड स्टोरी, बड़े होके, या फिर एन एक्सपीरियंस, एक स्टोरी एंड विल एंड. एक स्टोरी सच तो कोई स्टोरी You have so many stories, ma'am. We have time. Think about it. नहीं, मैं जो स्टूडेंट्स को कहती हूँ छोटी सी बात है, जैसे इम्पैक्ट की जो तुम बात कर रहे हो, वो इम्पैक्ट जैसे मुझे ध्यान है, आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड एंड वी हैड अ लाइब्रेरी पीरियड इन आवर स्कूल और एवरीवन वाज गोइंग टू लाइब्रेरी और मैं भी सब भीड़ में लाइब्रेरी में घुस गई. आई डोंट नो व्हाई बट दैट लाइब्रेरियन पॉइंटेड मी आउट कि आप लाइब्रेरी के अंदर कैसे घुसे. मैंने कहा मैम लाइब्रेरी पीरियड है इसलिए घुसे. तो मुझे बुरा भी लगा क्योंकि बाकी लोगों ने भी नहीं ली परमिशन, ये मुझे ही क्यों पॉइंट आउट कर रही है. बट ठीक है, वो उन्होंने किसी एक को पकड़ लिया तो वो मैं थी. तो मैंने कहा सॉरी मैम, मैंने नहीं लिया आपकी परमिशन. तो उन्होंने कहा डोंट यू थिंक कि लाइब्रेरी में या किसी भी जगह आप एंटर हो रहे हो तो आपको वहां जो बैठा है, टीचर है, जो भी है, आपको उनकी परमिशन लेनी चाहिए. मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, फॉर माय फॉल्ट. मैं वापस बाहर गई, आई टुक परमिशन, आई एंटर्ड. बट वो एक होता है ना, एक रिमार्क सा आपके माइंड पे हो जाता है कि मेरे को ही इन्होंने पॉइंट आउट करा और ये और वो, और उनकी बात भी सही थी. मैं उन्हें ये भी नहीं कह पाई कि नहीं आप तो गलत हो. Okay. तो वो एक दिमाग पे असर पड़ता है ना. तो मैं, वो दिन है और आज का दिन है, मैं शायद कहीं भी बिना नॉक करे, वो चाहे कोई हो, मेरा फ्रेंड हो, कोई, मेरे को हैबिट में आ गया है कि मैं पहले पूछती हूँ और फिर एंटर होती हूँ. तो मैं स्टूडेंट से भी यही उम्मीद करती हूँ कि कुछ लाइफ लेसन्स छोटी छोटी बातों से वो लेते रहे. ये मतलब जैसे पेन ना लाना, वो हम उनको बुला रहे हैं कहीं साइन करने के लिए और वो बिना पेन के आ जाता है. इट हैपन टू मी इन यूनिवर्सिटी. आई वेंट टू टुक माय मार्कशीट और मैंने उनसे कहा सर पेन देना, साइन करने होता है. तो उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट हैं. कहा तो एक स्टूडेंट बिना पेन के आ जाता है. एक स्टूडेंट के हाथ में तो उनका शस्त्र होता है, पेन तो हमेशा रहना चाहिए. मैं बाजार गई, बाजार से पेन खरीदा, वापस आई और अपनी मार्कशीट दी. तो मैं अभी भी स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि बिना पेन के आप फॉर्म लेना है. तो वो मेरे दिमाग पे असर है. तो ये मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं, एक छोटी सी एडवाइस है कि छोटे छोटे लाइफ लेसन्स जो होते हैं ना, उनको हमने जीवन में जरूर उतारना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए. अब एक स्टूडेंट ये बिना पेन के, ये शायद मेरे छप ही गया है दिमाग पे. और मैं सबको ये कहती रहती हूँ पेन अपने संग हमेशा रखो. नोट करने के लिए कुछ आजकल वैसे फोन्स हैं, सब कुछ है, बट समथिंग टू नोट अपने पास. The vibe with a pen and a diary, it cannot be replaced. So, okay, I think we should end it here. Hope that we'll have a conversation again. थैंक यू सो मच. सो ये था आज का पॉडकास्ट. अच्छी लगी ना बातचीत? अब इतनी दूर आए हो तो कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, और जो भी लगा हो वो हमारे साथ साझा करे ताकि हम इम्प्रूव कर सके और बेहतर कन्वर्सेशंस ला सके. फॉलो अस ऑन Spotify, subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram. Keep loving, keep sharing, drop your reviews. Till then, lots of love.